Dear students, good morning. In previous chapter and previous period, we have learned about life process, and you know that in life process you have to learn about nutrition, respiration, transportation and excretion. तो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है न्यूट्रिशन। आप बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन सब काम करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है, और एनर्जी आती कहाँ से है? तो आपका आंसर होगा फ्रॉम फूड। तो इस चैप्टर में हमको फूड के बारे में कि हाउ एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड, डाइजेस्ट द फूड, absorb the food and utilize and disposes the remaining means waste food. न्यूट्रिशन को पहले हम डिफाइन कर लें कि न्यूट्रिशन क्या है। Nutrition, it is the process by which organism take inside the food, digest it, absorb and utilizes the digested absorbed food and disposes of undigested food outside the body. The process by which organism takes food ingest food, digest, absorbs and dispose of undigested waste material. Waste material is termed as nutrition. This is the important life process, and all living organisms need food to get energy, and this nutrition involves many steps. It is not completed in single step. As you see,
It is the process by which organisms takes food, means ingest food, digest, absorb, utilizes and disposes of undigested waste material is termed as nutrition. Now a question perhaps can rise in your mind, that the way of the nutrition in all living organisms is the same, or do all the organisms get nutrition in the same way? No. There are different ways of nutrition. Different organisms get nutrients in different ways. Mainly, nutrition is divided into autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. You see plants. Have you ever seen plants taking food like you? No. Plants make their own food from inorganic simple substances and convert it into organic substances. Means they make their own food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight, and a green pigment present in the leaf of the plants help in this process. So there are two ways: nutrition trophic nutrition, and the other mode is heterotrophic nutrition. Autotrophic and heterotrophic nutrition. ऑटो मीन्स क्या होता है? खुद, सेल्फ. बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं. वह अपने एनवायरनमेंट से इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस लेते हैं. ये इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लेते हैं और उसको ऑर्गेनिक सबस्टांस में वो बदलते हैं. और ऐसे ही न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन उस तरह का न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म वह दूसरे जीव पर जो ऑटोट्रोफ्स है उस पर वह अपने फूड के लिए डिपेंड रहता है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अब डायरेक्टली जैसे हर्बीवोर्स है. हर्बीवोर्स क्या खाता है? प्लांट खाता है या प्लांट प्रोडक्ट खाता है. तो वह डायरेक्टली डिपेंड है ऑटोट्रोफ्स पर. लेकिन अब सपोज कीजिए टाइगर जो मांसाहारी जीव है, कार्निवोर,
वह डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड नहीं होकर के इनडायरेक्टली डिपेंड होता है। बाघ अगर डियर को खाता है तो डियर एक हर्बीवोर्स है जो प्लांट पर डिपेंड करता है। इसलिए ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म खुद से वह फूड नहीं बना सकता अपना, बल्कि वह दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है। खास करके वह ऑटोट्रोफ्स पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को हम डिफाइन करेंगे कैसे? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म makes its own food from simple inorganic substances like carbon dioxide, water, and convert it into organic substance like glucose. अब सवाल है कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जिस ऑर्गेनिज्म के द्वारा या जिस ऑर्गेनिज्म में होता है उसको हम क्या कहेंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं, ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। ऑटोट्रोफ्स का हम देख लें डेफिनेशन। Organisms that makes its own food from inorganic substances and convert them into organic substances is called autotroph. अब ऑटोट्रोफ कौन से जीव है जो अपना फूड खुद बनाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से? तो अपने प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, कुछ बैक्टीरिया भी अपना फूड खुद बनाता है। और ये जो ऑर्गेनिज्म्स हैं इनको हम ऑटोट्रोफ कहेंगे। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। फिर एक बार हम डिफाइन कर दें ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक substances like CO2, H2O, and convert them into organic substance like glucose is called autotrophic nutrition. ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में मेनली जो रॉ मटेरियल होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर,
ये दो रॉ मटेरियल है, इसके अलावे और भी रॉ मटेरियल है, सनलाइट भी रॉ मटेरियल ही है। और प्लांट में के लीफ में एक ग्रीन पिगमेंट्स जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, यह क्लोरोफिल इस प्रोसेस में हेल्प करता है। और इस प्रोसेस को जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का जो ये मोड है और ये प्रोसेस है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसको हम आगे पढ़ाने जा रहे हैं। अब जो है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms do not make their own food, but they also depend directly or indirectly on other organisms for their food requirement. Autotrophic nutrition भी दो तरह का होता है, लेकिन आपको एक तरह का पढ़ना, एक फोटोसिंथेसिस और दूसरा होता है केमोसिंथेसिस। जो कुछ बैक्टीरिया वह बिना लाइट का भी अपना फूड बनाता है, इसलिए इसको एक ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, दूसरा जिसमें लाइट की जरूरत होती है, और कुछ ऑर्गेनिज्म बिना लाइट का भी अपना फूड खुद बना सकता है, उसको हम केमोसिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि वह केमिकल सब्सटेंस के से अपना फूड बनाता है, उसको लाइट की जरूरत नहीं होती है। कुछ बैक्टीरिया है जो जिसको अपने फूड बनाने के लिए लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ बैक्टीरिया जो है लाइट के प्रेजेंस में ही फूड बनाता है। अब इसको देख लीजिए, फोटोसिंथेसिस, दूसरा होता है केमोसिंथेसिस। ये आपको नहीं पढ़ना है, मैं सिर्फ चर्चा कर देता हूं। और ये ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी जो है कई तरह के होते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और जो नेक्स्ट है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का भी टाइप्स है ना। यह जनरली ये जो देख रहे हैं चार तरह का, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोसिस और होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन आपने कुछ एल्गी को देखा होगा, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब सने गले चीज, जैसे गोबर को आपने देखा होगा, कुछ ऑर्गेनिक मैटर जहाँ डिकम्पोज होता है, सड़ता है, वह जो है वहाँ पर कुछ फंगी जो है उस डेड और
जो डिकेइंग मैटर है उससे अपना फूड बनाता है। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपने बहुत तरह के ऑर्गेनिम्स जैसे लाउज, बेडबग, हमारे बॉडी के अंदर राउंड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, ये जो ऑर्गेनिज्म है वह रहते हैं। प्लांट, कुछ प्लांट्स पैरासाइट होते हैं जैसे पिचर प्लांट। ये जो है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिम्स के बॉडी से वो अपना फूड प्राप्त करता है और इसको हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं और ऐसे जीव को हम पैरासाइट्स कहते हैं। सिम्बायोसिस, आपने लाइकेन का नाम सुना होगा। इट इज ए कॉम्बिनेशन और कह सकते हैं कि एसोसिएशन। लाइकेन इज एन एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी फॉर फूड रिक्वायरमेंट। In this mode of nutrition, both the organisms are benefited. Holozoic nutrition, जो खास करके हायर एनिमल्स, हम लोग हैं, कैट है, गाय, भैंस, ये सब जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन इनमें होता है। इसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड लेता है और बहुत सारे स्टेप के द्वारा, जैसे हमने कहा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन, एक्सक्रेशन, ये सब सारे स्टेप इसमें आते हैं। लेकिन हम हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में हमको ये पढ़ना है अपने सिलेबस में, होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसकी चर्चा करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, जो लाइट के प्रेजेंस में होता है। फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब निर्माण, इसलिए इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं क्योंकि यह लाइट के प्रेजेंस में होता है। सभी ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब जो है लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं और इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया है जो अपना फूड तो बनाते हैं लेकिन वह उसको लाइट नहीं चाहिए, है ना। ये बैक्टीरिया अपना फूड बनाते हैं लेकिन उनको लाइट नहीं चाहिए और इस तरह के सिंथेसिस को हम केमोसिंथेसिस कहते हैं क्योंकि वो केमिकल सबस्टांस से अपना फूड बनाते हैं। अब जो है हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस की चर्चा करेंगे। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो एज from its name you can know that it is the process which takes place in the presence of light. Photo means light, synthesis means बनाना, यानी ऑर्गेनिज्म अपना फूड लाइट के प्रेजेंस में बनाता है। तो थोड़ा फोटोसिंथेसिस को हम डिफाइन कर लें। द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि प्लांट्स, एल्गी, ये सब है। तो फिर उसको हम एक बार डिफाइन करते हैं। द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स यूटिलाइजेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कन्वर्ट देम इनटू glucose in the presence of sunlight with the help of chlorophyll present in their leaf is called photosynthesis। तो आपने देखा कि यह क्लोरोफिल के हेल्प से ही हो सकता है। और किस में होता है? क्या बना सकते हैं अपना फूड? नहीं। क्या गाय भैंस अपना फूड खुद बना सकते हैं? श्योरली नहीं। तो कौन बनाएगा? जिनमें ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल होगा। अपने 9th क्लास में क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा है कि सभी ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है और इस क्लोरोफिल के कारण ही वो ग्रीन होते हैं। अब प्लांट अपना फूड बनाने के लिए वह रॉ मटेरियल के रूप में
कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से लेता है, वाटर वो सॉइल से लेता है, क्लोरोफिल उनमें प्रेजेंट होता है और सनलाइट के प्रेजेंस में बनाता है। इसमें प्लांट सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस काम में उसको असिस्ट करता है क्लोरोफिल, और जो बेसिक रॉ मटेरियल दो जो है वह जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। लेकिन अगर रॉ मटेरियल की बात अगर आती है कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, देन वी कैन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर द raw materials for photosynthesis.